Okay, start. सुभाष बांसल जी भी है एग्जेक्टिव टीम के मेंबर। आवाज कम ठीक आ रही है जी? हाँ जी हाँ जी परफेक्ट है, बहुत perfect. बढ़िया आवाज आ रही है सर। Sir, I think we must start now. हाँ जी करो जी। संगम जी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। जी. Good evening everyone. In this study Evening. circle meeting, we will be covering two topics. First is filing of statement of donations form 10BD, which will be taken up by our worthy president CS Bhajan ji. And second topic is updated return to be deliberated by CS G Kaushal ji, our convener for study circle. This meeting will be conducted under the guidance of CA Gulshan Badwaji, co-convener of study circle, with technical matters of FX to be carried out by Pushkal Soni ji and Sangam Gatti. Queries and question and answer session will be taken up by Gulshan ji and Pushkal ji. Members can raise their queries in the chat box or by raise of hand. We will unmute the member for asking the query from the speaker if the member wants. Members, I would also like to bring to your knowledge that we have changed the bar room attendant. Vijay was not working properly, so we have replaced him. Now, Mr. Bobby, who is already attendant for the TA, will be the joint attendant for both the associations. Now, I would like to request CA Gulshan Badwaji to formally welcome our guest speakers and members. Gulshan ji, please. Thank you, Mohit ji. Very good evening to all the members. In today's meeting, discussion on both the topics, that is statement of donations form 10BD and updated return of income tax, are the need of the hour as we are encountering these topics for the first time. And members in general are facing issues in filing form 10BD, such as what is to be reported and what not to be reported, and what are its implications. Similarly, updated return of income tax is a topic posing many questions as to its applicability and its legal effect. To cover the topic of Form 10BD, we have none other than but the person who is known for his expertise on charitable trusts and President of DTBA, CA Subhash Jain ji. I, on my own behalf and on behalf of Team DTBA, welcome you, sir. And to cover the topic of updated return of income tax, we have none other than but a person with very technical acumen and very straightforward approach, CA Rajiv Kaushal ji. I also welcome Kaushal ji on my own behalf and on behalf of Team DTB. I also welcome CA Dinesh Sharma ji, CA Vikas Gupta ji from ITCA, and senior in the profession, PC Goyal sir, HK Neja ji, and other esteemed members. I welcome you all on behalf of Team DTB. Thank you very much. Over to Mohit. Thank you, sir. Now I would invite our member CA Arvinder Chawla ji to formally introduce our first guest speaker of the day, CA Subhash ji. Chawla ji, please. Thank you, Mohit ji. I am audible. Yes, sir. Thank you, Mohit ji, and very good evening to all my seniors and colleagues. Today, I have privilege to introduce worthy speaker for the first session, CA Subhash Jain ji. CA Subhash Jain ji did his commerce graduate from DAV College Jalandhar and masters from Punjab University Chandigarh in the year 1981 and won gold medal for securing first position in the university. He got 38 all India rank in CA Inter and passed CA Inter and final in the first attempt. He is in CA practice since 1986. His major area of practice is direct tax assessment and appellant. Presently, he is president of our District Taxation Bar Association Direct Taxes for the year 2022. He is president of Acharya Shri Atmaram Jain Charitable Eye Hospital and Acharya Shri Atmaram Jain Seva Sangh. He is also serving the society by holding prestigious posts in number of institutions and organizations. He is editor of monthly newsletter of Direct Taxes Bar Association Ludhiana for 10 years. He is secretary and president of Direct Tax Bar Association Direct Taxes Ludhiana
in past also. He is Secretary and Chairman of Ludhiana branch of NIRC of ICI and was awarded Best Chairman Award by NIRC. He served ICI by holding many other posts in Direct Tax Committee DTC and in the editorial board of the Chartered Accountant published by ICI New Delhi. He had also taken classes for CA students on income tax, GMCS and other orientation programs at the Ludhiana branch of NIRC of ICI. He also delivered lectures on various technical topics on direct taxes at different platforms. I welcome you, sir. Now I hand over the proceedings to CA Mohit Gupta ji. Thank you, Arvinder ji. It's now time to start the deliberation. I would now request our learned speaker to enlighten our members. Sir, Thank you, Mohit ji. Thank you, Gulshan ji, and thank you. Special thanks, Chawla ji, for so good words about me, my introduction. सबको सादर नमस्कार. Respected, I would say, senior members, and Gulshan Badwa ji, Mohit ji, and the executive team of DTBA, my co-speaker Rajiv Kaushal ji and convener of the study circle team, editor of the newsletter 2022 Aneja ji, President ITCA Vikas Gupta ji, members of the executive team of the branch Subhash Bansal ji. I'm seeing just Subhash Bansal and other members if they are present. Members of other bar associations from Punjab and Ludhiana. Our NAFC member Dinesh Sharma ji, senior PC Goyal ji, and my colleagues in executive team and members and other office bearers of other bars. It is indeed a career जैसे अपने दोस्तों अपने फैमिली में जब बोलना अच्छा लगता है तो जब वेबिनार में बोलने से लगभग ये है कि ज़्यादा लोग बाहर से भी अटेंड कर पाते हैं. I thank for giving me this opportunity to speak on this topic, Form 10BD, how to file Form 10BD. In this presentation, I will be sharing PPT. I will be covering the basic section where Form 10BD has come, section relating to 80G, then rules, whereby section 10BD, how to file it, what are the time limits, all these in the rules 18AB. Then the format of 18BD, practical how to file this Form 10BD. I have taken into account the handbook of statement of donations issued by the Institute of Chartered Accountants India Direct Tax Committee on 24th of May 2022. I have, it came to my notice yesterday, I have taken into account while preparing my presentation. So now I share the presentation. It is Section 80G was amended with effect from 1st of June 2020 by the Finance Act 2022, whereby this requirement of including giving statement of donations has been added. This is clause 8 in section 80G5. 80G5, as you know, is a section relating to the conditions whereby a donor is given deduction under section 80G with respect to donations made. And there are many conditions, registration approval requirement and other requirements. In that list of requirements, one more condition has now been added, which is that we have to file a statement of donations received by the donee who are registered under section 80G. And it is only on the basis of this statement that the donee will get the deduction under section 80G. So this clause 8, it reads like that: the institution or fund prepares such statement for such period as may be prescribed and delivered or caused to be delivered to the prescribed income tax authority or the person authorized by such authority, such statement in such form and verified in such manner and setting for such particulars and within such time as may be prescribed. There are many such
So all these have been clarified by way of issuing the rules, Rule 18AB. And one thing which may be taken note of, that in this clause 8 there is a proviso that says that any form, any statement which has already been filed can be rectified, can be corrected for any mistake, or to make any addition, deletion, or updation of the information which has already been filed. It is provided in the Act itself. So once this form has been made a statutory requirement under Section 80G(5), then the Rule 18AB has been inserted by the Income Tax 6th Amendment Rules 2021 with effect from 1st of April 2021, and it was amended by the Income Tax 14th Amendment Rules 2022 dated 9th of May 2022. I mean, ये जो फॉर्म है अभी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले इसमें अमेंडमेंट भी आ गई. अभी एक भी फॉर्म नहीं भरा गया, 1 अप्रैल के बाद भरने थे, तो अमेंडमेंट 9 मई 2022 को इसकी आ गई. तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें मैंने जो अमेंडमेंट आई है 9 मई की, I have covered that also. So sub rule 1 is relating to, which reads as, for the purposes of clause 8 of subsection 5 of section 80G, the prescribed authority shall be the principal director general of income tax. ये इसने हमें फॉर्म प्रिस्क्राइब करना था, वो कर दिया. Then the comes rule 2. Rule 2 prescribes that the statement of particulars required to be furnished by any research association, university, college or other institution or company or fund. ये जो है कंपनी, यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन, अदर फंड्स, कंपनी, इनको बोला गया रिपोर्टिंग पर्सन. In the further discussion and in the form itself and in the instructions to fill the form, this reporting person has been used many times. So this is important. The reporting, who is reporting person? Reporting person is all these persons who are required to file Form 80G, who are registered, who have got approval under Section 80G. They are the reporting persons. And the prescribed form is form number 10BD. It is as per sub rule 2 of Rule 18AB. Then sub rule 3, it is important. You must understand, you must know this rule 3. It says that whatever donations have been received by the donee, if multiple donations have been received, say 2000 एक बार आ गया, 5000 एक बार आ गया, 10000 एक बार आ गया, साल में 10-12 बार डोनेशन आ गई किसी पर्टिकुलर टाइप की, तो वो डोनेशंस को सबको टोटल किया जाएगा, एग्रीगेट करके एक ही बार में प्रेजेंट करना है. उसमें मतलब डोनेशन रिसीव्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप is to be aggregated and reported in the statement of donations. This is one part. And secondly, there may be a case where one donation has been given by more than one person. Joint donation, 2 या 3 लोगों ने मिलके donation दे दी. Then in that case, the amount will be proportionately given in the statement of each पैन अगेंस्ट ईच पैन. अगर कोई प्रोपोर्शन डिफाइन नहीं किया गया डोनर ने, देन द प्रोपोर्शन विल बी इक्वल. मीनिंग दैट भाई अगर आपके पास जॉइंट डोनेशन आ गई है तो उसकी प्रोपोर्शनेटली डिवीजन जो करनी है फॉर्म 10BD में, वो भी डोनी ने करनी है व्हाइल फाइलिंग द स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस. देन फॉर्म 10BD is to be signed under digital signature or under EVC. If it is, the return is to be filed under digital signature. If it is required to be filed under digital signature, then this form 10BD is also to be signed under digital signature, otherwise by electronic verification code. Verification of 10BD of 10BD is to be by the person who is authorized to verify the return under section 140. Then after receiving donation, there is one more obligation on the part of the donee, that is
One is the statement to be filed in Form 10BD. Then a certificate is also to be issued to the donee in Form 10BE. This is requirement of subsection 9, clause 9 of subsection 5 of section 80G. That institution of funds shall furnish to the donor a certificate specifying the amount of donation. And sub-rule 6 in Rule 18AB says that this form of certificate will be in Form 10BE. And time to furnish Form 10BE कब तक देना है? It is the 31st May of the immediately following the financial year in which the donation is received. 10BD की जो डेट है वो भी फाइल करने की डेट 31st May है, और 10BD एंड 10BE की भी फॉर्म नंबर 10BE की भी 31st May है. तो दोनों की डेट 31st May होने के कारण जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हो 10 ऑफ द डोनेशन इन फॉर्म 10BD, साथ के साथ ही 10BE फॉर्म भी आपने डाउनलोड करना है. अगर आपने फॉर्म डाउनलोड करने में डिले कर दी तो उसकी फीस एंड पेनल्टी अलग से है. अगर आपने मान लो 31st May को फॉर्म स्टेटमेंट फाइल की और 31st May के बाद आपने 1st June को डाउनलोड किया फॉर्म सर्टिफिकेट 10BE, तो इट मीन इट विल बी डिलेड फर्निशिंग ऑफ द सर्टिफिकेट टू द डोनर. ये ध्यान रखने वाली बात है. सेम डे को निकाल लीजिए. फीस एंड पेनल्टी कितनी लगेगी अगर आपने डिले कर दिया इन फाइलिंग फॉर्म 10BD? इट विल बी 200 रुपी पर डे ऑफ फॉर द डिफॉल्ट फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म 10BD or in furnishing the certificate in Form 10BE. However, the maximum amount is the amount of donation with respect to which the form has been delayed. अगर आपकी डिले जो है सिर्फ 2000 रुपए की डोनेशन के लिए है तो मैक्सिमम 2000 रुपया. अगर 12 दिन डिले हो गई है 2400 नहीं लगेगा तो 2000 ही फीस लगेगी. ये जैसे TDS में सिमिलर प्रोविजंस हैं. अगर आपने फॉर्म फाइल नहीं किया देन द पेनल्टी इज वेरी हाई. 10,000 इट मे रेंज फ्रॉम 10,000 मिनिमम, इट मे गो अप टू 1 lakh rupees फॉर नॉट फाइलिंग फॉर्म 10BD और नॉट इशूइंग द सर्टिफिकेट इन फॉर्म 10BE. दिस इज वेरी हार्श प्रोविजन. नाउ there are questions which are asked. Many members have asked this question. What is the status, what is the role of Form 10BD? Why this has come into picture? Why this is required? This has been clarified in Memorandum to Finance Bill 2021. I would read this memorandum. Filing of statement of donation by donee to cross-check claim of the donation by the donor. It may further be mentioned that certain provisions of the Act provide that an exempt entity may accept donations for utilization towards their objects in respect of which the payer, being the donor, gets deduction in computation of his income. Meaning thereby ATG की जो deduction है वो donor को मिलती है on the basis of donation given by that person. At present, ये जब मेमोरेंडम ये इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविजन तो उस समय एट प्रेजेंट there is no reporting obligation by the exempt entity receiving donation in respect of such a donation. With the advancement in technology, it is now feasible to standardize the process through which one-to-one matching between what is received by the exempt entity and what is claimed as deduction by the assessee. Meaning thereby, अभी तक क्या हो रहा था, जो डोनर था अपनी रिटर्न में ITR में ATG की डिडक्शन क्लेम करता था, लेकिन डिपार्टमेंट के पास कुछ भी ऐसा अल्टरनेटिव नहीं था, कुछ भी ऐसा चारा नहीं था कि उसको चेक करने के लिए कि ATG की डोनेशन इसने इतनी दी भी है या नहीं दी. तो वो डोनी ही बता सकता था कि मुझे इतनी डोनेशन आई है, वो डोनी जिसको ATG की अप्रूवल प्राप्त है. Meaning thereby, if the ATG approved association of fund has received the donation,
then that statement will be filed by the donee, and donor will claim. There जब 1-to-1 मैचिंग है वो अब पॉसिबल है विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पहले नहीं थी. Now one more para in this memorandum. This standardization, this is important, which I want to bring home. The standardization may be similar to the provisions relating to tax collection or deduction at source, which already exist in the Act. Therefore, the entities receiving donation may be made to furnish a statement in respect thereof and to issue a certificate to the donor payer, and the claim for deduction to the donor may be allowed on that basis only. Just similar to TDS and TCS provision है, जैसे TDS की फॉर्म 24 and 26 जाती है, उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन 26 AS में आ जाती है, और जो डिडक्टी है ऑन दैट बेसिस वो उसका TDS का क्लेम क्रेडिट लेता है. अगर 26 AS में वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो आपको TDS का क्लेम नहीं मिलता. अगर 26 AS में ज्यादा आ गई तो उसके ऊपर क्वेश्चन लगता है. अगर कम आई है तो आपको क्लेम कम मिलता है. इसी तरह से जो डोनेशन की डिटेल है वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये जो मेमोरेंडम के अनुसार और जो भी फॉर्म 10BD बना हुआ है, फॉर्म 10BE बना है, in my personal opinion, my personal humble opinion, it is not to reconcile the amount of donation credited in the income and expenditure account. It is only with respect to the donor that how much claim of under section 80G will be available to the donor. So I mean the apprehension that the department will be reconciling the amount of donations shown in the income and expenditure account will be matched with the amount of donation given in form 10BD. I think that may not be possible for the department because there could be many types of donations. This is my personal opinion, though the handbook of procedure statement given by the institute is little different on that. But I think because there are many types of donations which may not be eligible for 80G and which may not be required to be given in this statement, there could be so many reasons where we are unable to this donation in the form 10BD. So I would discuss why this while discussing form 10BD, how many types of information we can give in form 10BD. There could be so many other types of information donations received which we may not be able to give, right? So this is important because the provisions of TDS till date, I think they have not been used against the deductor. 24 26 में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको डिडक्टर के अगेंस्ट यूज नहीं किया गया, डिडक्टी के अगेंस्ट तो यूज किया गया कि आपके 26 AS में इतनी अमाउंट आ रही है, आपने रिटर्न में इतनी शोन की है, लेकिन डिडक्टर के केस में वो नहीं कर पा रही. जैसे कॉन्ट्रैक्टर के केस में बहुत सारी अमाउंट्स ऐसी हैं जिसमें TDS नहीं कटना, ऑडिट नहीं है, 30,000 से कम है, 1 लाख से कम है, ऐसे ही बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें आपका 1-to-1 मैचिंग नहीं हो पाती. और आई थिंक डोनेशन के केस में भी शायद यही होगा, और दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10BD. तो बेसिक फंडा जो है वो मेमोरेंडम ने एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिक पर्पस इज टू स्टैंडर्डाइज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द डोनी and the amount of donation claimed by the 80G deduction claimed under section 80G by the donor, उनको दोनों को मैच करना बेसिक पर्पस है. Now the process of filing form 10BD is log in to the income tax e-filing portal, go to e-file income tax forms, any other source of information, tax exemption at least form 10BD is to be selected, then select financial year. In this form will open. There are 3 parts in form 10BD, the basic information, then B is the details of donation, then C is the verification part. File the part B, form A जो basic information अपने आप auto populate हो जाएगी, उसमें आप change कर सकते हो. अगर कोई आपकी requirement है, लगता है कि गलत है, ठीक नहीं है, तो उसको आप change कर सकते हैं. Then in B, it is the details of donations. Whatever donations have been, details of that is to be given. I will be taking in detail that part.
Then form part C is verification of that form and fill the part B. जो part B है details of donation, इसमें 25,000 rows की provision दी गई है, right? In form 10BD can be filed multiple times. एक बार फाइल कर दिया, दूसरी बार भी फाइल कर सकते हो. Different type of donation के different form फाइल कर सकते हो. And once the data is inserted into the CSV file, upload the same in the portal. The preview of the form will be available. आप उसको करेक्शन करने के बाद वेरीफाई करिए ऑनलाइन वाया डिजिटल सिग्नेचर और वाया EBC और ये अपलोड हो जाएगी. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10BD. Now coming to form 10BD, what are the different parts in form 10BD? फॉर्म 10BD जो है पार्ट ए में पैन आएगा, रिपोर्टिंग पीरियड आएगा. जब आपने लॉगिन कर लिया जो पैन एंड रिपोर्टिंग पीरियड जैसे अभी 21-22 फाइनेंशियल ईयर है वो आ जाएगा पैन ऑफ द रिपोर्टिंग पर्सन. रिपोर्टिंग पर्सन मीन जो 80G की जिसने डोनेशन ली है. Part B is important for the purpose of 10BD, for the purpose of discussion for the today's webinar. I will discuss this one by one. First is serial number, no doubt, no question. Pre-acknowledgement number. ये जो pre-acknowledgement number है, ये पहली बार जब आपने फॉर्म 10BD भरना है, ये इसको भरने की जरूरत है, ब्लैक रहेगा. लेकिन जब आपने दोबारा रिवाइज करना है, करेक्ट करना है या सेकंड टाइम भरना है, तो जो प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर जो पहली बार का आया हुआ है फॉर्म 10BD का, वो नंबर इसमें फिल होगा. देन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डोनर. तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डोनर है, ये कितनी तरह के आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये वाले हैं. टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पैन, आधार नंबर. If neither a PAN or Aadhaar is available, one of the following should be filled. Taxpayer identification number of the country where the person resides, अगर foreign country से है. Passport number, electro photo identity number, driving license number, even ration card number has been prescribed. So there are 7 types of identification proofs of the donor which are to be filled there. That what is the identification number of that. अगर पैन नंबर है पैन नंबर, आधार का तो आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, वोटर आईडी कार्ड का नंबर, ऐसे जितने भी ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भरने हैं. उसके अगले में आईडी कोड, जो पासपोर्ट या पैन नंबर है उसके जो कोड है वो भरने हैं ये वाले. अगर पैन है तो कोड 1, अगर आधार नंबर है कोड 2, अगर पासपोर्ट है तो नंबर 4, राशन कार्ड है तो फॉर्म नंबर 7. These are the numbers which are to be filled. Then comes the section code. Section code is again they are given in this notes only in the form 10BD. In number 3, it is 4 types of sections which are to be used, may be used. One is section 80G, 35(1)(2)(a, 35(1)(2), 35(1)(3). ये 4 सेक्शन में से कोई भी सेक्शन इसमें आएगा जब कोड आएगा. Then the unique registration number. URN number is the number registration number of the reporting person. 80G जो आपको मिला है उसमें जो URN नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जहाँ आएगा. डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वो भी जो सर्टिफिकेट आपको 80G की अप्रूवल मिली है वो उसकी डेट यहाँ आएगी. देन कम्स द पर्टिकुलर ऑफ द डोनर. वन इज नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस ऑफ द डोनर एंड डोनेशन टाइप. अब डोनेशन टाइप भी जो है 4 तरह की है. ये वाली डोनेशन टाइप 3 तरह की है. वन इज कॉर्पस डोनेशन, अनदर इज स्पेसिफिक ग्रांट, थर्ड इज अदर्स. अब इसमें जो कॉर्पस एंड स्पेसिफिक ग्रांट को 2 को स्पेसिफाई कर दिया गया है. जो पहले हमेशा कंफ्यूजन रहा है कि कॉर्पस डोनेशन क्या है. अब कॉर्पस एंड स्पेसिफिक ग्रांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कॉर्पस डोनेशन इज डोनेशन टुवर्ड्स कॉर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, and specific grant is specific for that purpose, specific for the building purpose, specific for the furniture purpose, specific for the scholarship. Any grant which is received for a specific purpose, that is specific grant, and which is for the general purpose, it is corpus donation, and others is without any specific purpose. वो 3 तरह की A, B and C जो है वो इसमें भरी जाएगी डोनेशन टाइप में. Then comes the mode of receipt. अब मोड ऑफ रिसीप्ट भी एक इंपॉर्टेंट है.
ये 4 तरह के हैं। वन इज कैश, अनदर इज काइंड, सी इज इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग अकाउंट पे, चेक और ड्राफ्ट एंड अदर्स। अब इसमें आई थिंक जब इन काइंड की अमाउंट लिखी है, इन काइंड को वी आर टू कन्वर्ट इनटू मनी। अगर शेयर्स मिल गए हैं या कोई बिल्डिंग मिल गई है, उसकी मनी में कन्वर्ट करेंगे, वो अमाउंट यहाँ दी जाएगी। हालांकि 80G सेक्शन 5 में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है, 80G सेक्शन में, कि दैट डोनेशन रिसीव्ड और गिवन इन काइंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। आई मीन सेक्शन 80G की डिडक्शन इन काइंड डोनेशन में नहीं मिलती। लेकिन जहां पर स्पेसिफिक उन्होंने इन काइंड को भी मोड ऑफ रिसीप्ट में फॉर्म 10BD में डाला है। इट मींस दे वांट इंफॉर्मेशन अबाउट द डोनेशन रिसीव्ड इन काइंड इवन दो 80G डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल। Then the next column is the amount of Indian rupees, donation in Indian rupees। अगर आपको फॉरेन डोनेशन आई है तो उसको भी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, राइट। ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में है, इसमें वेरिफिकेशन ना आई सन ऑफ फेयर बाय डिक्लेयर, ये खास बात नहीं है। जिसने भी साइन करने हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका पैन क्या है। ये पार्ट बी फॉर्म 10BD की सारी डिटेल बस इतनी ही है, 3 पार्ट्स में है। दोबारा से बता रहा हूँ, डिटेल ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन, जो पैन एंड रिपोर्टिंग पीरियड, देन द डिटेल्स ऑफ द donation received, donor and donations, then the verification. Now, multiple form 10BD can be filed by the same reporting person। ये प्रोसीजर जो डिफाइन किया है उसमें ये बताया गया कि मल्टीपल फॉर्म कैन बी फाइल्ड। एक बंदा जो है ज्यादा फॉर्म भी फाइल कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ डोनेशंस के लिए, जैसे 35 की हो सकती है, 80G की भी हो सकती है, तो वो फॉर्म फाइल कर सकता है। लेकिन जो बेसिकली इसमें है, डोनेशन टाइप कैश में आई है या मोड कैश इन काइंड है, या डोनेशन टाइप 2-3 तरह की हो सकती है, कोई कॉर्पस हो सकती है, कोई जनरल डोनेशन हो सकती है, तो एक एक के लिए डिफरेंट लाइन यूज होगी। अगर ज्वाइंट डोनेशन है तो उसके भी लाइन यूज होगी डिफरेंट। अगर मल्टीपल डोनेशन एक ही तरह की आई है तो उसकी सारी एक ही यूज किया जाएगी। 25,000 तक हम इसमें लाइंस ऐड कर सकते हैं, राइट। इसमें और नहीं कुछ भी ज्यादा। ये है सेकंड वाली, अगर कोई रिपोर्टिंग पर्सन ने डिस्प्ले किया गया और उसे वो चेंज की जा सकती है, और ऑप्शन टू चेंज भी वहां पर दी गई है। सेवंथ में है, इन केस ऑफ डोनर व्हिच हैव बीन गिवन डोनेशन व्हिच आर एलिजिबल अंडर डिफरेंट सेक्शंस और व्हिच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और इन डिफरेंट मोड्स, सेपरेट रोज शुड बी filled for each of such combination. Now, after filing the form 10BD, uploading form 10BD under the process given, I have already explained, form 10BE will be generated from the system. It is a certificate which is to be issued to the donor. And ये बहुत सिंपल सा है, रिपोर्टिंग पर्सन की पैन है, नेम ऑफ द पैन, एड्रेस ऑफ द रिपोर्टिंग पर्सन, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ इशू और रजिस्ट्रेशन, ये बेसिक डिटेल्स है डोनी की। और उसके बाद है डोनर एंड डोनेशंस की डिटेल है, उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन है, आधार है, या कोई अदर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो हो गया, नेम ऑफ द डोनर हो गया, एज, एड्रेस ऑफ द डोनर, अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड, फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच सच डोनेशन, टाइप ऑफ डोनेशन, सॉरी, corpus donation है, स्पेसिफिक ग्रांट्स है, अदर्स है, सेक्शन अंडर व्हिच डोनेशन इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, उसके बाद डिटेल ऑफ साइन है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, जो ऑटो पॉपुलेटेड है वैसे वहां से निकलेगा। प्री एक्नॉलेजमेंट बता दिया। नाउ द प्रैक्टिकल पार्ट, जिसने भी इंफॉर्मेशन डोनर से जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है उस समय ये इंफॉर्मेशन ले ली जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में डोनेशन डिटेल इकट्ठी करनी मुश्किल हो रही है। मैंने जैसे अभी लोगों को फोन करता हूँ 80G की आपने रिटर्न भरनी है, स्टेटमेंट भरनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं रहती। नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास, पैन नंबर की कॉपी या आधार की कॉपी, समथिंग लाइक दैट, या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है इसके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स है। टाइप ऑफ डोनेशन, कॉर्पस है या स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अदर्स है, वो सब हमने लेने हैं।
मोड ऑफ रिसीट तो हमें पता ही होगा, अमाउंट ऑफ डोनेशन भी पता होगा, सिग्नेचर होगा, तो डोनर चाहिए। ये एक फॉर्मेट बना लिया जाए, तो फॉर्मेट बनाकर जब भी डोनेशन आए ये डिटेल उसमें साइन करवा लिए जाए। उससे क्या होगा कि जो स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड कॉर्पस के लिए वो भी पूरी हो जाएगी, और उसका जो डिटेल है पैन आधार वगैरह की डिटेल भी आ जाएगी। नहीं तो अदरवाइज फॉर्म 10BD भरना इज रियली डिफिकल्ट। हम उस अब इकट्ठी करते हैं, तो एवरी डोनर जो मान लो इंस्टीट्यूशन को आ गया, तो डोनर्स को, डिफरेंट डोनर्स को वो फोन कर करके पूछते हैं, और डोनर देने में कतराता है, या दे नहीं पाता, या बाहर है अंदर है, तो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी रियली डिफिकल्ट हो रही है। तो अब जो डोनर है जिसको फॉर्म 10BE मिला है, उसने ITR में ये वाली डिटेल भरनी है। डोनेशन टाइप क्या थी, पैन ऑफ द डोनी, नेम ऑफ, ये डोनर ने भरनी है अब अपनी ITR में। तो ये ITR में जो ITR 1 में सीरियल नंबर M ऑफ पार्ट C में ये इंफॉर्मेशन जाती है। नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस ऑफ द डोनी, डोनेशन इन कैश और अदर मोड, टोटल डोनेशंस मेड, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशंस, ये डोनर ने अपनी ITR फॉर्म में भरना है, तब उसको 80G की डिडक्शन मिलेगी। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कुछ सम ऑफ दीज हैव बीन डिस्कस्ड बाय हैंडबुक ऑफ द इंस्टीट्यूट। Donations received in kind, it is to be just converted into money and then it is to be given, though section 80G deduction is not available to a person who has given donation in kind. It is specifically barred in section 80G. Small and penny donations. See, many times 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया मिल जाता है, 500, 1000 मिल गया, 1100 मिल गया, 2100 मिल गया। अगर कैश में 2000 से ज्यादा मिला है तो उसकी तो एलिजिबिलिटी ही नहीं है डोनेशन के लिए। लेकिन अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिपोर्टिंग डोनेशन अंडर दिस फॉर्म। अगर 100 रुपए का भी है 80G अब बेनिफिट, 200 रुपए का, 500 रुपए का भी है, तो वो 80G का बेनिफिट देना है। मेरे ख्याल ऐसा एक था कि 200 रुपए से 250 से कम हो तो आप शायद नहीं दे सकते, वो मेरे ध्यान में आ रहा है, बट अदरवाइज आई हैव नॉट रेड रिसेंटली। अदरवाइज इस फॉर्म को भरने के लिए नो थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कोई। तो फॉरेन करेंसी में अगर डोनेशन कोई आई है तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ, दिस इज गिवन इन द हैंडबुक ऑफ स्टेटमेंट बाय इंस्टीट्यूट। तो फॉरेन एक्सचेंज की जो 80G को उसने क्लेम करनी है या नहीं करें, आई डोंट नो, बट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ रिसीट। अगर रिलीजियस ट्रस्ट है कोई, उसने फॉर्म 10BD भरना है, तो उसके लिए ये फॉर्म 10BD की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, क्योंकि रिलीजियस ट्रस्ट को 80G मिलता नहीं है, अदरवाइज 80G की अप्रूवल नहीं मिलती। बट फिर अगर फिर भी 80G की अप्रूवल ले ली है तो क्लियर नहीं है कि वो कैसे भरेंगे। आई थिंक हैंडबुक में भी यही है। तो मुझे लगता है कि फॉर्म 10BD उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। अगर पैन डिटेल नहीं है तो जैसे बता दें अदर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है डोनर के पास, तो दैट विल मे बी ट्रीटेड एज एनोनिमस डोनेशन, राइट। ये जो एनोनिमस डोनेशन की अभी तक कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई थी, मुझे लगता है फॉर्म 10BD में से एनोनिमस डोनेशन की गाइडलाइन आ जाएगी 115 BBC सेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पे कोई प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स नहीं थे, गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करने थे। हालांकि अभी भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है सेक्शन 115 BBC के लिए, लेकिन ये एक हमें गाइडलाइन मिल सकती है दैट द आइडेंटिफिकेशन प्रूफ गिवन इन फॉर्म 10BD आर द आइडेंटिफिकेशन प्रूफ टू determine whether the donation is anonymous or not, right? So one has to take care of that कि anonymous donation ना रहे। अगर anonymous donation होगी तो 30% टैक्स वहां पर सीधा सीधा लग जाएगा in case of other than religious trusts। अगर डोनेशन कुछ भी ना मिली हो, कोई डोनेशन आई ही नहीं, 80G में रजिस्टर तो है, तो फॉर्म 10BD भरा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें कोई रिटर्न भरने 10BD स्टेटमेंट भरने में वो भरने नहीं देता सिस्टम। मीनिंग देयर बाय इट इज टू बी फाइल्ड ओनली व्हेन यू हैव रिसीव्ड सम डोनेशन on which section 80G deduction is to be given. Whether form 10BD can be revised, yes, it can be corrected. They provided in the section 80G section 5 में ही दिया गया है that it can be revised. How many times can it be filed? Multiple times it can be filed. This is provided in the
फॉर्म इटसेल्फ। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अगर आपने भरी है कोई, तो एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस फॉर्म 10BD भरने, कम से कम मैं ये सुजेस्ट कर रहा हूँ, अगर मान लो 10 लोगों से डोनेशन आई है, आपके पास 2 की इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, तो वो 2 की तो जरूर भर दो ताकि वो फॉर्म डिलेड ना हो। अगर फॉर्म डिलेड हो गया तो 200 रुपये रोज की पेनल्टी है, सर्टिफिकेट इशू करने में की 200 अलग, और फॉर्म लेट फाइल करने की 200 रुपया अलग से 400 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी, सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ डोनेशन। सो फॉर्म 10BD शुड बी फाइल्ड एंड दैट अगर कोई गलती रह गई है तो करेक्शन बाद में भी हो सकती है, अपडेटेशन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, डिलीशन भी हो सकती है। करेक्शन स्टेटमेंट कितनी बार फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक रूल में कहीं भी नहीं है। और जैसे मैं ये समझता हूँ, जैसे TDS की स्टेटमेंट है, हम काफी बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो TDS की तरह ही इस करेक्शन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट द बेसिक information giving mechanism whereby the donor is giving information to the department, through the department to the donor. This information will come in his form 26AS, and on the basis of that certificate form 10BE, even if he doesn't have form 10BE at the time of filing return of income with him, the form 26AS can be used to file the return to claim deduction under section 80G, right? Then correction statement, there could be many occasions they can be filed. Donation in offering box, ये भी एक इशू है। जो ऑफरिंग बॉक्स है उसमें जो डोनेशन आई है उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। जैसे गुप्तदान आ गया कोई, या कोई जो लगा होता है बक्सा लगा हुआ है, दान बॉक्स उसमें आ गए, तो वो सारा का सारा जो है डोनेशन एनोनिमस डोनेशन मानी जाएगी। अगर तो कोई है आई मीन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसके लिए तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी ए डोनेशन इन एनोनिमस डोनेशन। ये मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट है। अब इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा मैंने फास्ट किया कि 2 प्रेजेंटेशन आज की हैं, तो सेकंड प्रेजेंटेशन में भी टाइम लगेगा। तो हमारे पास टोटल 2 आवर्स हमने जो अपने एलोकेट किए थे उसमें मेरा 1 घंटा हो गया है। अब क्वेश्चंस कोई भी हो तो वो आई थिंक आई विल बी एबल टू माय एबिलिटी आई विल बी एबल टू रिप्लाई। मोहित जी, आप प्रेजेंटेशन के बाद आप जो भी आप करना चाहते देखिए प्लीज। Thank you, sir. Thank you for your deliberation. I will request Gulshan ji and Pushkar ji, in case there is some queries, I can see some queries. सर जी। काफी सारी क्वेरीज आई हैं। सर पहली क्वेरी मेगा कालरा की तरफ से है, वेदर फॉर्म 10BD नीड टू बी फाइल्ड only of eligible donor who want to claim deduction under section 80G or for all donation received during the year under consideration. देखो, इसमें मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरी मेगा से कालरा से पहले भी बात हुई थी, मुझे लगता है कि सिर्फ वही डोनेशन आनी चाहिए जहां पे 80G की एलिजिबिलिटी बनेगी। मान लो किसी ने 10,000 रुपये कैश दे दिया, राइट, उसके बाद नाम एड्रेस सब कुछ है, मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, बट दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G बिकॉज डोनेशन गिवन मोर देन 2,000 इन कैश इज नॉट एलिजिबल फॉर 80G डिडक्शन। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या है कि काफी सारी डोनेशन हमें वो हो सकती है जो एनोनिमस हो, जिसकी हमारे पास डिटेल ही नहीं है। आज भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास डोनेशन काफी सारी आई हुई है, उसमें से 20 लाख की तो अमाउंट डोनर की डिटेल है, 3-4 की ऐसी है जिसकी हमारे पास डिटेल नहीं है। और क्या होता है समाज में, मैंने देखा है कि 31,000 मैंने दे दिया, मेरा नाम लिखवा 31,000 रुपये मैंने देना है, लेकिन मैंने पर्ची नहीं कटवानी जी। तो फिर वहां पे इंस्टीट्यूट क्या करती है, 1500 की पर्चियां काट देते हैं डिफरेंट नामों से। अब ऐसी जो पर्चियां काटी गई हैं, अगर आप इसकी डिटेल दे भी देते हैं, पैन आपके पास अगर नहीं है, आधार डिटेल वो नहीं है,
पहले तो वो फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा, क्योंकि फॉर्म 10BD के जो कॉलम है उसमें आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ अपने पास आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो वो फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। अगर हम फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते तो पहली तो जगह प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, हम फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते। दूसरी ये है कि उसको एटीजी मिलेगा ही नहीं, बिकॉज एलिजिबिलिटी नहीं बनती पड़ी। मोर देन 2000 है, अगर 2000 से कम कैश मिला तो एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन हमारे पास पर्टिकुलर नहीं है, तो वो डिटेल्ड पर्टिकुलर ना होने के कारण में एनोनिमस डोनेशन भी मानी जा सकती है। अगर 115 बीबीसी लग गया तो एनोनिमस डोनेशन के अकॉर्डिंग 30% टैक्स लग जाएगा। बट सिमिलरली द प्रॉब्लम है स्कूल एजुकेशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन तो लगेगा। अगर एजुकेशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, रिलीजियस टाइप की है, तो उसमें 115 बीबीसी भी नहीं लगता। तो ये मुझे लगता है कि देने की जरूरत नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि देने की जरूरत नहीं। और किसी मेंबर की कोई और इसमें इसी व्यू के साथ ही उन्होंने पूछा है कि इसका व्यू डिफरेंट हो तो वो मैं आई वेलकम दैट व्यू। पीसी गोयल जी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग डे इन एंड डे आउट and we have to find a reply on that. It is my personal view, humble view. Other members may have different view. I would certainly like member to share that view. कुलभूषण गोयल जी भी है, पीसी गोयल जी प्लीज आप बताइए। सर इसी क्वेरी के साथ ही क्वेरी है, अगर हम फॉर्म में अगर नहीं देते तो फिर ऑटोमेटिकली वो नॉनमस डोनेशन में या फिर हमारे को क्वेरीज आनी शुरू हो जाएंगी, ये नॉनमस डोनेशन है। ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है जो फॉर्म 10BD का जो मेमोरेंडम में भी दिया गया है, जो टीडीएस की जैसे हम फॉर्म भरते हैं 24 के हो 26 के हो, क्या कभी आज तक क्वेरी आई है कि आपने भरा है जी 3 लाख रुपए का, आपकी इनकम टैक्स पीएलएम में आ रहा है 16 लाख रुपया? ऐसी कोई मैचिंग का प्रावधान इस समय तक नहीं दिया गया है। कल को डिपार्टमेंट यूज करना शुरू करते हैं, वो तो यूजेज होगी कैसे? तो मैंने डिफरेंट हेड्स में बैलेंस शीट में दिया हुआ है। फॉर्म 10BD में एक स्पेसिफिक कॉलम में देना है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ देना है। तो फॉर्म 10BD को हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ मैचिंग होगी कैसे? आई डोंट थिंक इट इज प्रैक्टिकल। कुछ अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में है, अगर स्पेसिफिक ग्रांट तो हो सकता बैलेंस शीट में हो, कुछ कॉर्पस डोनेशन है वो हो सकता है डिफरेंट प्रेजेंट किया गया हो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ डिफरेंटली प्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर्म 10BD जैसे टीडीएस की स्टेटमेंट जाती है 24 के हो 26 के हो, मैंने इसलिए स्पेसिफिक वो जो मेमोरेंडम था उसमें से वो पैरा स्पेसिफिकली निकाल के इसमें दिया है, क्योंकि मेरा माइंड ये कहता है कि जैसे टीडीएस की डिटेल जाती है ऐसे ही डोनेशन की डिटेल जाएगी, तो वहां पर भी मैचिंग डिडक्टर के एंगल से नहीं होती, डिडक्टी के एंगल से होती है कि डिडक्टी ने क्या उतनी अमाउंट इनकम रिटर्न में भर दी या नहीं भरी। अगर उतनी अमाउंट नहीं है तो उसको क्वेश्चन आते हैं कि आपने जितना टीडीएस आपका काटा गया उतना क्लेम ज्यादा लिया है, आपकी अमाउंट उससे मैच नहीं होती। 26A के साथ तो मैचिंग हो रही है डिडक्टी की, लेकिन डिडक्टर के साथ मैचिंग कहीं भी नहीं। आप अभी तक मेरी नॉलेज में कोई ऐसा नहीं केस आया जिसमें डिडक्टर के साथ मैचिंग होती हो। सिमिलर इज द केस हियर, जहां पर भी मैचिंग डोनरी की मैचिंग शायद प्रैक्टिकल ना हो, डोनर की मैचिंग जरूर हो। पर्पज भी यही है, टारगेट भी यही है। पीसी गोयल जी कुछ इसमें ऐड करना चाहते थे। नहीं जैन साहब बहुत अच्छे तरीके नाल तुसी एक्सप्लेन किया, मैं ऐड नहीं करना चाहना, थोड़ी अपने व्यू पर्सनल देना चाहना। जो चीज तुसी कही है ना कि इन केस ऑफ एनोनिमस डिसीजन 10,000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ कैश केस च, दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर ATG। ऐसे सूरत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 10BD ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ पर्सनल व्यू है मैं भी यही कह रहा रीजन एब्सोल्युटली सर, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, सर ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 10BD ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ only to those benefit of those donor who are eligible for ATG। ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਈਏ। अच्छा इन केस ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 10,000 ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ whenever they provide those things, in case they want to avail ATG benefit, then the correction statement can be filed।
एब्सोल्युटली सर, आई एग्री विद यू, मेरे भी सेम व्यूज है, आपने डिफरेंट वर्ड्स में बोल रहे हैं. आई थिंक वी नीड टू गिव आपके ओनली भी सेम ही है. we give only those particulars where we have all the details, either identification number, identification code, and which is eligible for section 80G. because 10,000 की डोनेशन दे दी, particulars हमारे पास अगर है भी, एग्रीकल्चर लिस्ट ने मान लो दे दी हमें 10,000 की, उसके particulars हमारे पास हैं, आधार कार्ड भी है, लेकिन वो डिटेल देने की आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज Super that person. person is not eligible, that person is not eligible to claim deduction under section 80G. जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका टीडीएस की जरूरत ही नहीं है, वो तो डिटेल हम नहीं देते. 1 लाख से पूरे दिन साल में कम है तो हम उसकी भी डिटेल नहीं देते. ऐसे ही जैसे 24-26 में हम नहीं देते. सिमिलरली क्योंकि उन्होंने उसमें एनालॉजी उन्होंने बनाई है कि जैसे टीडीएस में स्टैंडर्डाइजेशन किया है, ऐसे ही डोनेशन में भी स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं. इससे जैन साहब को मेरी और सजेशन है. Sir, purpose is to verify the donation claimed under section 80G by the donor. ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੀਏ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਇਨ ਫਾਰਮ 10 BD should be filed quarterly if possible to avoid penalty and other things. मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, एक लाइन भर के ही चाहे फॉर्म भर दो, ताकि वो दैट शुड गो इन टाइम. हाँ भाई. There is no liability, there is no extra fees which is to be paid in case of delayed filing. It must be avoided. जैसे TDS में हम करते हैं, सिमिलर correction statement फाइल की जा सकती है. काफी सारे हैंड्स रेज हो गए हैं. आई थिंक कुलभूषण गोयल जी का हैंड रेज है. किसका जी? सर मेरा भी है, वो भी जो यशवाद जी ਦੇ ਨਾਲ और पीसी गोयल साहब ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, लेकिन एट द सेम टाइम ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਰੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਡੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, then they come to know the quantum of anonymous donation. हेलो हेलो कुलभूषण जी बोल लो, कंटिन्यू. मेरी सर आवाज नहीं सुनाई दे रही. maybe corpus donation as well may include. कोयल साहब आ रही है आवाज. But we have to identify that. सर कॉर्पस डोनेशन ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੈਪਰੇਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੀਐਨਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕॉर्पस ਡੋਨੇਸ਼ਨ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਏਗੀ. Then in the income and expenditure you will be showing the 10 lakh of rupees of donation, whereas you are filing only of 5 lakh rupees. Form BD will be of 5 lakh rupees. बिल्कुल The बिल्कुल ठीक. anonymous donation will be automatically calculated. Certain. You can get a notice itself. It may also be the logic behind all these also. Whereas the Jain Sahab, the purpose of bringing this form 10 BD is to give a hassle-free deduction to the donors. No doubt for matching purpose also. Department earlier has no mechanism to tally the donation claimed by the donors and the donation received by the trust or the donees. Am I And clear? they like to check the anonymous donation. It earlier now it is not there, but it may be behind the. Definitely. Okay, thank you. विकास गुप्ता जी. Sir, there is a point, how many times Form 10 BD can be filed? Will you throw light on this? Why do we not need to file it more than once? सर इसमें मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है, मल्टीपल फॉर्म्स 10 BD कैन बी फाइल. कितनी बार है उसके नंबर तो नहीं दिया गया, पर मल्टीपल टाइम्स का मतलब यही है कि आप बार बार फाइल कर सकते हैं. जैसे उन्होंने Any number of times. बेसिकली पर्पज सर मैंने करेक्शन फाइल कर दी अपने सारे डोनर की, तो why do I need to file it again? सर करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत पड़ सकती है. कोई रह गई, करेक्शन के तौर पे फाइल कर सकते हैं बार बार, ये कहना चाह रहे हो? जी ऐसा है, उन्होंने प्रोविजन दे दिया, अगर आपने सारे के सारे फाइल कर दिए, आपको करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने की, दोबारा फाइल करने की जरूरत नहीं है, राइट. लेकिन अगर आपके पास मान लो कोई एक बंदा आ गई, मैंने आपको डोनेशन दी थी, आपने अकाउंट फाइल ही नहीं की, वो याद आता है यार हाँ इसने भी दी थी, पर्ची बाद में काटी जाती है कि जेब में रह गई, कुछ भी हो गया, चेक मिलाते हुए बैंक 31 मई तक भरनी है आपने, 30 जून को अपने बैलेंस शीट फाइल की, यार ये एक डोनेशन रहेगी देने से, क्या करोगे उसका, उसमें ऐड कर सकते हो आप. तो जैसे टीडीएस की रिटर्न हम रेगुलरली करेक्ट करते रहते हैं. इट इज सिमिलर टू टीडीएस रिटर्न, टीडीएस स्टेटमेंट. ठीक है. मोदी जी कौन कर रहा है फॉलो? एक पवन
पवन बहल जी का क्वेश्चन है कि अगर किसी डोनर से कैश और चेक दोनों के थ्रू डोनेशन रिसीव हुई है तो फॉर्म 10 बीडी में वो सेपरेट लाइन आइटम्स होंगे। फॉर्म 10 बीडी में आपको जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतनी लाइन ऐड करने का आप करोगे। बार बार टेम्पलेट बनेगा, वो सारी जो 10 9 8 9 इंफॉर्मेशन है वो बार बार आप फीड करोगे। पहले कैश, फिर चेक, फिर डीडी, फिर काइंड, जितने भी तरह के, जैसे ज्वाइंट है तो ज्वाइंट के हिसाब से 2 बार हो जाएगा। तो उसमें 25,000 लाइन ऐड की गई हैं। 25,000 लाइन तक आप उसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अगर मान लो 25,000 से ज्यादा हो गए तो भाई मल्टीपल फॉर्म आ जाएगा। करेक्ट सर। एक ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट वेदर टू बी रिपोर्टेड इन फॉर्म 10 बीडी। In fact, मेरी पर्सनल राय है कि grant received from government is not to be given here because the government will not be claiming any section 80G deduction. This is my personal view. करेक्ट सर। एक आईसीआई ने जो हैंडबुक इशू की है उसके पेज नंबर 19 का रेफरेंस देख के मेगा कालड़ा वो पूछ रही हैं, कहते हैं इट इज मेंशन्ड दैट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन ऑफ डोनेशन अंडर सेक्शन 115 बीबीसी। मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने ये एप्रीहेंशन की है इंस्टीट्यूट के उसमें कि अगर वो डोनेशन इन काइंड आई, सॉरी स्मॉल अमाउंट की आई है या जिसके बारे में पर्टिकुलर नहीं है, अगर पर्टिकुलर नहीं है तो वो डोनेशन एनोनिमस ही मानी जाएगी। ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन जिसके पर्टिकुलर हमारे पास है, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है, उसने 10,000 की डोनेशन दे दी, उसको 80G की एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती। मैं उसको 80G में क्यों दूं, फिर 10 बीडी में क्यों दूं? ये एनोनिमस डोनेशन नहीं बनेगी। ये डोनेशन वो है जिसके पर्टिकुलर मेरे पास है लेकिन 80G में मैं नहीं दे रहा। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी ये हो गई सिचुएशन जहां मेरे पास पर्टिकुलर ही नहीं है, जहां मेरे पास नाम तो है, एड्रेस ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 31,000 की डोनेशन आ गई, 2,000 की 15 रसीदें काट दी, वो उसमें एड्रेस नहीं है मेरे पास। इफ आई डोंट हैव एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ द डोनर देन सर्टेनली इट इज एनोनिमस डोनेशन। इट इज अदरवाइज 10 बीडी फॉर्म का आज आया है, इट इज ऑलरेडी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल as anonymous donation under section 115 BBC if that section is applicable, because that section is applicable only to, in my view, only to educational and health institutions. To others it is not applicable. फिर उसमें भी 5% और 1 लाख तक की अमाउंट है, वो कंडीशन जो भी वहां पे अगर एप्लीकेबल हो गई तो देन इट विल बी सब्जेक्ट टू 30% टैक्सेशन। चलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम ना 6:15 बजे स्टार्ट। दिनेश शर्मा जी का एक क्वेश्चन, दिनेश शर्मा का हैंड रेज था। नहीं, बेसिकली मैं पीसी गोयल जी और अपना कुलभूषण गोयल जी की गल के उत्ते कहना सी, उन्होंने पहले ही कहा था 80 बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਲੇਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਏਟੀਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਗੇ बेसिकली। सर ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 80G ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਚ ਆਇਆ ਜੀ। 80G ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ conditions to claim deduction under section 80G जी, उसका एक पार्ट है, उसमें क्लॉज 8 डाल दी गई। इट मीन दिस द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज to streamline the claim of deduction by the donor and to match it with the donee's working, because हो क्या रहा था, बेंगलोर में केस आए थे ये वाले, डोनी के पास तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं थी और सैलरीड पर्सन ने वहां 80G क्लेम कर ली। क्लेम की हुई सीए के पास नंबर था 80G की उसका एसएससी का, उसने वो नंबर डाल कर कितने ही फ्रॉड कर दिए, 80G की डिडक्शन क्लेम करा दी, लोगों को टैक्स फ्री इनकम बना दी। जब ये केस पकड़ा गया तो गवर्नमेंट ने काफी उसमें एक्शन लिया था, बट ऐसे केसेस हो रहे थे तो डिपार्टमेंट वाइज ऑफ द व्यू के इनकी मैचिंग होनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है तो वो मैचिंग पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल कर रहे हैं वो लोग। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। सर पवन मैं एक मेंबर नु रिक्वेस्ट करूंगा, सुभाष बांसल जी का है। अच्छा सॉरी गुलशन जी, सुभाष बांसल जी का क्वेश्चन है दैट इज कि अगर हमने कोई मल्टीपल अच्छा हैंड रेज है सर, हमने डोनर ने तो डोनेशन हमने दे दी, हमने पर्टिकुलर्स भी अपने सारे सबमिट कर दिया, पर डोनी ने अपने 10 बीडी फाइल ही नहीं की, तो हमारी 80G की डिडक्शन का क्या होगा?
सर आपको 80G की डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है सबसेक्शन 80G की सब एक्सप्लेनेशन 2A है, सेक्शन 80G5 में एक्सप्लेनेशन 2A है, donor will get the deduction only if the donor gives the details in form 10BD. Otherwise, donor will not be able to get deduction under section 80G. And donor के पास कोई अधिकार मुझे अभी तक नहीं दिखा है, except giving a complaint to the department कि 200 रुपए रोज की उसको पेनल्टी लगनी चाहिए, 10,000 से लेकर 1 लाख की पेनल्टी है, दिस दैट जो भी प्रोविजन है वो डोनर के ऊपर लग जाएंगे। अगर डोनर के पास और राइट कोई, जैसे टीडीएस के सेम प्रॉब्लम है सर, Yes, टीडीएस में 26 तो years सेम प्रॉब्लम है, वी आर एट बहुत एट द मर्सी ऑफ डिडक्टर, डिडक्टर ने डिडक्ट कर लिया लेकिन जमा ही नहीं कराया या रिटर्न नहीं भरी, मुझे क्लेम ही नहीं मिलता, बड़ा सिमिलर इज हियर। I think next topic in case हाँ to tell me to जैन साहब रिमेनिंग 2-3 क्वेरीज आप बाद में अगर ले लें सेशन के, जैसे आपको ठीक लगे, मैं तो बैठा हूँ सर। नेक्स्ट करके उसके बाद राजीव कौशल जी भी उनका भी मतलब ही हैज अब उनका अपना एक स्टाइल है, वो सुनना भी मजेदार रहेगा। आई थिंक वो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई एम विद यू, जैसे आप ठीक लगे। आज के प्रेसिडेंट आप हो। सर 2-3 क्वेरी ना बाद में ले लेंगे इकट्ठे उसके। श्योर एग्रीड। मोहित जी प्लीज। moving ahead, I would like now request Sangam. For that I thank all of you and thanks for the patient hearing, patient learning। और आपने जितने क्वेश्चन आए हैं, मुझे लगता था कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आए बहुत अच्छा लगा कि मेरी भी अपडेशन हो जाए। Thank you sir, thank you very much। Sangam ji, now I would request you to introduce Rajiv Kaushal ji। Thank you, Mohit ji। It's my privilege to introduce CA Rajiv Kaushal ji, our speaker for the second session. He is a fellow member of ICI who qualified in 1997. He is senior partner at Kaushal Serene and Associates. He has served as secretary of DTBA during 2010 and vice president during 2016. He contributed towards the association in capacity of member and convener of various committees in different years. Presently also he is serving as convener of study circle committee formed under DTBA 2022. He also acted as faculty of income tax in Ludhiana branch of NIRC during 2008 and 2009. He delivered lectures at different platforms with respect to taxation matters. Welcome you, sir. Mohit ji. Rajiv sir, please, now I would request you to start your presentation, sir. Sir, your voice is not audible. Sir, your voice. Please, sir, your voice is not audible. नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। मोहित जी एक बार सबको म्यूट करके कौशल साहब को अनम्यूट कर। सर नहीं आ रही सर आपकी आवाज। पहले तो आ रही थी सर, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर माइक। What we can do, जब तक सर का सर ज्वाइन नहीं करता तब तक जो एक दो क्वेरीज रहेंगे वो ले लेते हैं सर। पर सर को मुझे लग रहा है जैन साहब एक दो क्वेरीज उतनी देर में ले लेते हैं जितनी देर में कौशल साहब ज्वाइन करते हैं। ठीक है सर, if what if PAN of donor is not available? अगर पैन